Hello, good morning everyone. Yes, am I audible? Hello, hello Swapnil, hello Neha. Yes, Adil, hello. Hello Jay, hello Utkarsh, hello Parul. Hi, good morning Sakshi. Hi Dhruv. Yes, good morning Aishi. Yes, Bhavna, hello, good morning. Hello Krati. Yes, means I am completely audible. Yeah, good morning everyone. Good morning, good morning. So let's start our practice session from today. I'm very excited. What's about you? Yeah. Actually, Swapnil, yes. Yeah, yes. Oh, okay. Okay, let's start. Dear esteemed participants, welcome to the dawn of a remarkable journey. Today, we embark on the path that promised to redefine your preparation of self paced online modules Set B for strategic cost and performance management. As we begin with this exciting chapter, I want promise from all of you to stay consistent and study in a very disciplined manner. You all are ready? Yes, yes, Bhavna. Yes, yes, Neha. Okay, Swapnil. Yes. So your dedication and enthusiasm not only provide you a extremely successful result, but it also gives me a relief that my efforts prove so fruitful for you all. And I am here dedicated to provide the resource, the support, and the guidance you all need to cater this exams. Okay. So let's proceed. But before starting, let me thank you for being here and for your unwavering dedication. Let's make this meeting not just productive but truly extraordinary. So we will start first with MCQ portion, then we will cover few practical portion. First of all, tell me whether you have completed lectures that was on YouTube. Have you completed all your lectures? Okay. So this is the scenario. Yes. Let's proceed with MCQ portion. So here I am on पेज नंबर 1.60. सब लोग पेज नंबर 1.60 पर आ जाएं. MCQ नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे. पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स से रिलेटेड है. 1.60 वैल्यू प्रोपोजिशन मैप का क्वेश्चन है ये. पेज 1.60. Yes. So should I proceed? Okay. Thank you, Bhavna. Thank you. Oh, so let me read it first, and then you people guess answer. Okay. Mr. No, Neha, no. Yeah, you can see directly. Okay, okay. Mr. Anirban, Chief Management Accountant and Advisor to CEO of Avanta Holdings, considering the value proposition canvas as tool to respond the aspect highlighted by the customer profile analysis. You recently joined Avanta Holding. Then Mr. Anirban. Mr. Anirban कौन है? He is the CEO and advisor of Avanta Holding. He asks you to appraise the following statement to pick the correct statement. अब इन चारों में से सही statement कौन सा है वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के अकॉर्डिंग? वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो वैल्यू प्रोपोजिशन मैप में हमने क्या देखा था? एक साइड ऐसे बना होता है, एक साइड पेन क्रिएटर्स होता है, एक तरफ गेन पेन रिलीवर होता है, एक तरफ गेन क्रिएटर होता है. ओके. सो ऐसा सा बना होता है. हमने पढ़ा है वैल्यू प्रोपोजिशन मैप. तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि वैल्यू प्रोपोजिशन मैप के अकॉर्डिंग पेन रिलीवर्स
करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम। पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स काउंटर ईच अदर इफेक्ट। अब एकदम लॉजिक है, एक पेन रिलीवर है जो कस्टमर के पेन को कम करने की कोशिश कर रहा है, एक गेन क्रिएटर है जो कस्टमर के लिए गेन क्रिएट कर रहा है। तो क्या वो एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं? नहीं नहीं, काउंटर कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेट। देखो एमसीक्यू हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, हम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, जो सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे फिर उसको चूज़ करने का रीज़न और नहीं चूज़ करने का रीज़न भी बताऊंगी मैं आपको, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पेन रिलीवर गेन क्रिएटर कभी भी एक दूसरे को काउंटर नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट, पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स आर द वन एंड द सेम थिंग। सेम भी नहीं है। सेम कैसे हो सकते हैं? दो अलग अलग नाम हैं, दो अलग अलग वर्क हैं उनके, तो सेम भी नहीं है। एक पेन रिलीवर का काम कर रहा है, गेन क्रिएटर का, तो अलग अलग है। देन पेन रिलीवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गेन क्रिएटर्स। यस, डिफरेंट तो हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, इधर वन ऑफ द पेन रिलीवर और गेन क्रिएटर कैन बी अ पार्ट ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन मैप। क्या दोनों में से एक ही वैल्यू प्रोपोजिशन मैप का पार्ट बनेंगे? नहीं नहीं, दोनों में से एक क्यों बनेंगे? दोनों ही वैल्यू प्रोपोजिशन मैप का पार्ट है, तो ये आंसर भी गलत। ठीक है, जब 3 आंसर गलत हुए तो ऑटोमेटिकली 4th आंसर सही है। दिस इज एक्चुअली द ट्रिक, यू नो, वेरी पावरफुल ट्रिक टू सॉल्व एमसीक्यू। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। जितने आपको लगते हैं एमसीक्यू गलत होंगे उसको पहले एलिमिनेट कर दो, देन you will get the right answer. Okay, so the answer is C for this MCQ. यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने कुछ रीजनिंग दी है। इफ़ you want you may read it at your home. मैं तो अपने लॉजिक बताती चलूँगी आपको। so यहाँ पर या पूरा फिट हो गया, थोड़ा सा अब सही है ना। फर्स्ट एमसीक्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम? या यस नेहा, इट वाज इजी। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस एमसीक्यू, वहाँ पर बोला कि उन्होंने पहले बोला था कि यू आर हायर्ड, अब यहाँ पर बोला है नीलंजन इज हायर्ड बाय अवंता होल्डिंग्स एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट फॉर ड्राफ्टिंग वैल्यू प्रोपोजिशन। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोला, ये तो असेस कर रहे, रिस्पॉन्स कर रहे, सब कुछ पढ़ा, ये सब कुछ बताया, बहुत सारी चीज़ें मिस्टर नीलंजन के बारे में। अब यहाँ बता, मिस्टर अनिर्बन इज नॉट कन्विंस्ड विद द नीड ऑफ रैंक ऑफ द सेड एलिमेंट ऑफ कस्टमर प्रोफाइल। 3 एलिमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है। कस्टमर प्रोफाइल के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। कस्टमर जॉब, पेन एंड गेन। जॉब, पेन, गेन, वैल्यू प्रोपोजिशन के जो 3 पार्ट होते हैं उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपसे बोला है कि आप इसको सही से बताइए। तो आप बताइए कि क्या आंसर होगा। पेन एंड गेन्स आर कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, ऑल द पेन एंड गेन्स आर नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड और एड्रेस। गेस करिए, व्हाट शुड बी द आंसर। रिकॉर्डेड वाले जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो पॉज कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर काफ़ी टाइम लगता है, मैं बच्चों से गेस करवाती हूँ। तो जितने भी लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस करें। ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आंसर पर ना जाए। ओके, यस स्वप्निल, करेक्ट नेहा, करेक्ट साक्षी, आयुषी, भावना, करेक्ट ध्रुव, करेक्ट कृति, यस करेक्ट। ओके, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पेन एंड गेन अगर बिजनेस कंट्रोल कर लेता तो वैल्यू प्रोपोजिशन मैप ही क्यों बनता, है ना। अगर पेन और गेन दोनों बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल करेगा। ऑल द पेन एंड गेन नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड, सारे पेन और गेन रिस्पॉन्ड नहीं करने होते हैं बिजनेस को। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। ओके, अगर बिजनेस कंट्रोल कर लेता तो वैल्यू प्रोपोजिशन मैप में दोनों को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो सिंपल। यस,
यू ऑल गेट इट? सरप्राइज। चलो थर्ड MCQ देखते हैं. द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग अराउंड इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट. आपको पता है कि लीडरशिप के 3 एस्पेक्ट होते हैं. रिकॉल आ रहा है? रिकॉल कर पा रहे हैं आप लीडरशिप के 3 एस्पेक्ट? कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और एक और था. ये कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग तो यहीं पर दिया है. एक और एस्पेक्ट था. कैन यू रिकॉल? देखिए मैं आपको बताती हूँ. वी आर ऑन पेज नंबर 1.61. ओके, वेट मैं आपको दिखाती हूँ. ये कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस एथिक्स, ये 3 थे. ठीक है, 3 एस्पेक्ट है लीडरशिप के. यस 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 स्वप्निल, यस एग्जैक्टली यस. तो यहाँ पर लीडरशिप के 3 एस्पेक्ट है, कम्युनिकेशन, बिजनेस एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग. ओके हाँ ठीक है, हम जल्दी कवर कर लेते हैं MCQs, उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन में कवर करेंगे. यस. तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि MBWA किससे कंसर्न्ड होता है. तो यहाँ पर मैंने देखिए ये मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग या वॉकिंग अराउंड, MBWA. देखो मैं साथ में यहाँ पर मॉड्यूल भी दिखाती चल रही हूँ. हाँ, एक बार मॉड्यूल पढ़ाया फिर एक बार मॉड्यूल दिखा भी रही हूँ. तो MBWA यहाँ पर किससे कंसर्न होता है. सो हियर इट इज रिटन दैट दिस टेक्निक इज कंसर्न विथ communication. This technique is concerned with तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है. ओके 1.61 पे आ जाएं सब लोग वापस. पेज नंबर 1.61 यस. तो यहाँ पर हमारा MCQ नंबर 3 का आंसर क्या होगा. द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग अराउंड इज कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट. कौन से एस्पेक्ट से? कम्युनिकेशन से. एग्जैक्टली. अरे तुम लोग तो सब बताने लगे अभी से प्रो. यस आदिल. यस ओके. यस एग्जैक्टली. या जय करेक्ट. उत्कर्ष करेक्ट. भावना एग्जैक्टली. या एवरीवन इज करेक्ट. it related to communication. Then proceed to next MCQ number 4. इसमें क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं टेक्नोलॉजी इज डायनेमिक इन नेचर एंड हैज सिग्निफिकेंस बेयरिंग ऑन द एक्टिविटीज. टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कहाँ पर आएगी. यहाँ पर RFID बोला है. RFID का क्या मीनिंग होता है? RFID का मतलब होता है Can anyone tell me? हाँ एग्जैक्टली. तरनप्रीत राइट आंसर. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन राइट आंसर. सो यहाँ पर बोला है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को हम किस में रखेंगे. इनबाउंड लॉजिस्टिक में रखेंगे, आउटबाउंड लॉजिस्टिक में रखेंगे, सेल्स मार्केटिंग में, आफ्टर सेल सर्विस, किस में टेक्नोलॉजी को हम स्पेस देंगे. टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंट बेयरिंग ऑन एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर. तो हम इसको किस में स्पेस देंगे. गेस योर आंसर्स. यस अरजीत. ओके, सो हम टेक्नोलॉजी को कहाँ स्पेस देंगे. 1 and 2 ओनली. 1 and 2 ओनली कैसे? सबने 1 and 2 बता दिया. इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में स्पेस देंगे. मार्केटिंग एंड सेल्स में क्यों नहीं?
आफ्टर सेल सर्विस में भी नहीं। यस, RFID स्पेसिफिकली इनबाउंड और आउटबाउंड से रिलेटेड है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट MCQ नंबर 5। बिजनेस मॉडल शुड कंटेन विच 3 कंपोनेंट। बिजनेस मॉडल में कौन से 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए? ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताऊँ मैं आपको कहाँ पर है? चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ दोबारा ताकि आपको रिकॉल हो जाए। यस, ये बिजनेस मॉडल। सब लोग पेज नंबर 1.24 पर आए। पेज नंबर 1.24, पेज नंबर 1.24। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला, की रिसोर्स एंड प्रोसेस, ये 3 बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन है। बिजनेस मॉडल, अ बिजनेस मॉडल शुड कंटेन। पेज 1.24 पर सब आए। सब लोग जल्दी जल्दी पहुंचो। पेज 1.24 बिजनेस मॉडल वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करता है। कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला एंड की रिसोर्स एंड प्रोसेस। ओके, देन अगेन हम अपने MCQ पर चलते हैं। पेज नंबर 1.63। हाँ, या वी गॉट इट। 1.62 पे लास्ट में। बिजनेस मॉडल शुड कंटेन वैल्यू प्रोपोजिशन, प्रॉफिट फॉर्मूला एंड की रिसोर्स एंड प्रोसेस। ये तीनों हमने वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा पेज 1.24 पर। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता है? इम्पैक्ट फैक्टर नहीं आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट नहीं आता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। थर्ड पॉइंट तो नहीं आता। थर्ड पॉइंट नहीं आता तो इसको तो कट कर दो। बोल रहा है सिर्फ 1 2 3 1 2 4 आता है, 1 3 4 आता है, तो 3 तो नहीं आता है, इसको भी कट कर दो। थर्ड पॉइंट तो नहीं आता है, ये भी कट। फिर यहाँ 2 3 4 बोला तो ये भी कट। तो कौन सा राइट आंसर है? बी। ओके, इज इट क्लियर? या, इट्स ए डायरेक्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपने घर पे एक बार फिर से देखने हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको वहाँ पर बोला था कि तब इतना रिलेवेंट नहीं है, बट इस पर एक क्वेश्चन फॉर्म किया इंस्टीट्यूट ने। MCQ नंबर 6 पर आते हैं। जो एंट्री बैरियर एग्जिट बैरियर वाला आपको मैंने एक मैट्रिक्स बताया था, यस, उसी मैट्रिक्स पर। इसमें देखिए क्या बोला है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो मार्क कर। या इन्होंने बोला है हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, मतलब एंट्री और एग्जिट दोनों बैरियर्स हाई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैट्रिक्स होती थी वो ऐसे होती थी, ऐसे करके। ओके, यहाँ पर लो रहता था, यहाँ पर हाई, यहाँ पर लो रहता था, यहाँ पर हाई, लो एंड हाई, ये मैट्रिक्स होती थी। अब लो वाले में क्या होता था? एंट्री यहाँ पे ये एंट्री बैरियर होता था, यहाँ पर ये एग्जिट बैरियर होता था। तो अगर लो है, लो अगर ये, मैं नेक्स्ट दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर एंट्री बैरियर लो है और एग्जिट बैरियर भी लो है तो रिटर्न कैसे रहते थे? लो, मीन्स स्टेबल, LS। अगर एंट्री बैरियर हाई है बट एग्जिट बैरियर लो है तो रिटर्न कैसे होते थे? हाई एंड स्टेबल होते थे। ओके, देन अगर एंट्री बैरियर लो है बट एग्जिट बैरियर हाई है, देन रिटर्न लो होते थे बट रिस्की होते थे। देन अगर एंट्री बैरियर हाई है और एग्जिट बैरियर भी हाई है, देन रिटर्न हाई होते थे एंड रिस्की रिटर्न होते थे। अगर ये मैट्रिक्स रिकॉल नहीं हुई हो तो भी इट्स फाइन, ठीक है, इट्स फाइन। ये मैट्रिक्स अभी याद कर लो। देखो याद क्या करना था, मैंने आपको लॉजिक बताया था, कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि क्या क्या होता है जब अगर एंट्री बैरियर हाई होते हैं एंड एग्जिट बैरियर भी हाई होते हैं। तो उस केस में एंट्री बैरियर हाई है एंड एग्जिट बैरियर लो हैं,
नहीं, एंट्री बैरियर भी हाई है और एग्जिट बैरियर भी हाई है, जो ये केस है एंट्री हाई एंट्री एंड हाई एग्जिट बैरियर। तो इस केस में हाई रिटर्न एंड रिस्की रिटर्न आता है, हाई मार्जिन आता है विथ रिस्की रिटर्न। क्यों आता है? क्योंकि हाई एंट्री एंड एग्जिट बैरियर, ना आपकी इंडस्ट्री में ना आपकी मार्केट में कोई इंटर कर सकता है, ना आपकी मार्केट से कोई एग्जिट कर सकता है। जब ना कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है, तो मतलब हाई रिटर्न्स हैं, बट रिस्क बहुत है, क्योंकि आप ऐसे रिस्की बिजनेस में इन्वॉल्व है जहाँ पर कोई आ जा नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हाई रिस्क है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। ओके, द आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ये बहुत ही स्ट्रेट अवे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो इसको एक बार या तो देख लो या फिर जाकर एक बार कॉन्सेप्ट लेक्चर देख लेना। बट ये इतना ही डायरेक्ट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। हाई एंट्री एंड हाई एग्जिट बैरियर मतलब कि ना कोई आपके मार्केट में आ रहा है ना कोई आपके मार्केट से जा रहा है, देन हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं एंड रिस्की रिटर्न मिल रहे हैं। सो सिंपल। एवरीवन अंडरस्टैंड? ओके ओके ओके, या ठीक, ओके ओके, यस। नेक्स्ट MCQ नंबर 7। इसमें बोला है, ये इतना कुछ है, ये अपने आप से पढ़ लेना। जो काम की बात है वो ये है कि इसमें से आपको करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर ढूंढना है इन तीनों इसमें। तो इन तीनों में से हम इनकरेक्ट आंसर कैसे ढूंढेंगे? हमने तो इसको दो बार पढ़ा है। पहले तो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था और चैप्टर नंबर 1 में भी थोड़ा पार्ट पढ़ा था। जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था तो मैंने आपको रेफ़र किया था कि किस पेज नंबर पे चैप्टर 2 में दिया हुआ है। ओके, अगर नहीं रिकॉल आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर रिकॉल नहीं भी हो रहा है तो ठीक है, चलता है। पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपको ये किस पेज नंबर पर देखना है। एक एक MCQ दिखा रही हूँ। हाँ, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो। जब अब अगली बार से आना तो रिवाइज करके आना। कल की क्लास में हम रिवाइज करके बैठेंगे। या शुभम, पेज नंबर 1.44, पेज नंबर 1.44 पर आते हैं। ओरिएंटेशन पूछ रहा है। अगर ये है IS स्ट्रैटेजी मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो क्या है? डिमांड ओरिएंटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी है, देन इट इज सप्लाई ओरिएंटेड। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी इज सप्लाई ओरिएंटेड। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ओके, पेज नंबर 1.44। यस, तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो IS होती है वो डिमांड ओरिएंटेड, IT सप्लाई ओरिएंटेड एंड IM रिलेशनशिप ओरिएंटेड। चलते हैं अपने वापस पेज पर। कौन सा पेज नंबर था? 1.65। क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बोल रहा है IT स्ट्रेटजी सप्लाई ओरिएंटेड। हाँ, हमने पढ़ा। IS स्ट्रेटजीज डिमांड ओरिएंटेड। हाँ। IM स्ट्रेटजीज डायमेंशन ओरिएंटेड क्या होता है? हमने तो पढ़ा था IM स्ट्रेटजीज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट इनकरेक्ट कौन सा है? 3 ओनली। द करेक्ट आंसर इज B. ओके, देन हेयर Ali Fabrics has recently decided to invest in EDI. Then AFL purchased department staff to place order using postal mail and telephone to the company's supplier. अब ये वैल्यू चेन में कहाँ आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, आउटबाउंड में आएगा, प्रोक्योरमेंट में आएगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, इनबाउंड में आएगा, प्रोक्योरमेंट में आएगा, आउटबाउंड में? देखो, हम कोई चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो परचेज कभी आउटबाउंड का पार्ट तो बनेगी नहीं, तो इसको कट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट नहीं बनेगी, इसको भी कट कर दिया। या तो इनबाउंड में आएगा या तो प्रोक्योरमेंट में आएगा। जो इनबाउंड होती है उसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये स्टोरिंग, कलेक्शन एंड रिट्रीवल से रिलेटेड और प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी है। तो इसमें परचेजिंग तो नहीं है, इसमें स्टोरिंग, कलेक्शन एंड रिट्रीवल है, तो इसको भी कट कर दें। द करेक्ट आंसर इज प्रोक्योरमेंट। Okay, the correct answer is procurement. C is correct answer.
इज इट क्लियर? अरे बहुत ईजी है। यस 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 यस, सब कुछ समझ में आ रहा है, क्वाइट एस्टॉनिशिंग। चलो अपन ये पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट assume the role of a leader who need to make or assist in decision making in wake of organization strategy, make communication and communication ethical। ये देखो वही वाला है जो अभी भी मैंने आपको बताया, 3 रोल होते हैं, कम्युनिकेशन, एथिकल एंड डिसीजन मेकिंग। 3 रोल होते हैं, देखो तीनों रोल यहीं पर आ गया, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड एथिकल। देख रहे हो कि इंस्टीट्यूट कैसे कैसे क्वेश्चन बनाता है, कि क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिले विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसको मत ही पढ़ना जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, जब तक कि इससे लिंक ना हो, जब तक उसको मत ही पढ़ना। बस इनकरेक्ट तो बस नीचे का पढ़ना शुरू कर दो, ये इससे टाइम बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि इनकरेक्ट क्या है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेग्रीगेटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इन सेपरेट मैनेजरियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेग्रीगेटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब इंक्रीज होते हैं तो क्या वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को सेपरेट कर देते हैं? देखते हैं आगे पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर पार्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम्स। Yes, management accountant are part of cross-functional team. This is correct. Then management accountant make significant decision making and resolve operating problem while supporting strategic decision making. Animesh is asking what is cross-functional team. देखो cross-functional team मतलब अगर आपको एक फंक्शन है, बिजनेस में फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, प्रोडक्शन फंक्शन, परचेजिंग फंक्शन एंड सेल्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन होते हैं। तो इन सब के मैनेजमेंट अकाउंटेंट आते हैं एक साथ। इन सब की जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट की टीम्स होती हैं, तो सारी टीम एक साथ आती हैं और वो एक दूसरे के साथ में अपना डेटा शेयर करते हैं टू वर्क इन द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। ओके, इसको कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम, मतलब दूसरे फंक्शंस की टीम जब मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के पास आती हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट उस क्रॉस फंक्शनल टीम को अपनी गाइडेंस देते, दैट यू शुड डू दिस, यू शुडंट डू दिस, ऐसे करके। ओके, क्लियर? यस, ओके, एनी डाउट? नो, ओके, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेक सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन एंड रिजॉल्व ऑपरेटिंग प्रॉब्लम बाय सपोर्टिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। करेक्ट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो हेल्प करते हैं, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज चेंज कंसिडरेबली। यस, चेंज हुआ है कंसिडरेबली। और यहाँ पर क्या बोला, ये 3 तो आंसर करेक्ट हो गए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेग्रीगेटिंग मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को सेग्रीगेट इन सेपरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या उसको सेपरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट्स में रख देते हैं? नहीं, उसको तो ओवरऑल काम करना होता है ना। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है, उसको ओवरऑल स्ट्रैटेजी कंपनी की बनानी होती है। तो सेपरेट रखें तो वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसे बनाएगा? तो दिस इज द इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, मतलब कि दिस इज द आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना क्या चीज़ इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट आंसर है, जो इनकरेक्ट है वही आंसर है। करेक्ट तो नहीं हो जाएगा बट आंसर वही है। तो आंसर इज ए, ओनली 1। ओके, देन हेयर इट इज MCQ नंबर 10, टाटा फैब्रिक कंसिडरिंग द डिसीजन। 1 मिनट, ये क्या बोल रहा है? पॉइंट की बात ये है कि इसमें सेगमेंट कैसे होना चाहिए, ऑल सेगमेंट मस्ट बी, सेगमेंट कैसे होने चाहिए, हम इस एक बार आपको ये रिकॉल कराती हूँ मैं। सेगमेंट, हमने सेगमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी, कहाँ गया, यहीं कहीं तो था। यस, यहीं पर है। यस, ये रहा। मार्केट सेगमेंट इज अ कैटेगरी ऑफ कस्टमर हु हैव लाइक सेगमेंट। ये यहाँ पर पढ़ा था, सेगमेंट और मार्केट सेगमेंट। होमोजेनियस इंटरनली, हेट्रोजेनियस एक्सटर्नली, याद आ रहा है?
ये पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट्स में, होमोजीनियस इंटरनली, हेट्रोजीनियस एक्सटर्नली, आइडेंटिफाइबल एंड शैल बी रीजनेबल एंड इफ नॉट सब्सटेंशियल। रीजनेबल होना चाहिए सेगमेंट साइज, और सेगमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इट मस्ट रिस्पॉन्ड फॉर मार्केट ऑफरिंग्स, सो दिस इज व्हाट सेगमेंट शुड बी। चलते हैं वापस अपने एमसीक्यू की तरफ। पेज नंबर कौन सा था? पेज नंबर 1.65 आई थिंक, 1.65। Yeah, here it is. MCQ number 10. What it is? It is saying that डिस्टिंक्टिव, यस डिस्टिंक्टिव तो होगा, क्योंकि डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या होगा? हेट्रोजीनियस एक्सटर्नली डिस्टिंक्ट होगा। आर्टिस्टिक होगा? नो, इट्स नॉट इमिटेट, इट कैन नॉट बी इमिटेटेड, सो आर्टिस्टिक तो नहीं होगा। मेजरेबल होगा? यस, मेजरेबल मतलब आइडेंटिफाइबिलिटी, ये होगा। प्रॉफिटेबल होगा? यस। रीजनेबल बट नॉट सब्सटेंशियल, यू रिमेंबर, तो ये भी होगा। तो इसमें क्या होगा, मैं मार्क करती हूँ। डिस्टिंक्ट होगा, आर्टिस्टिक नहीं होगा, मेजरेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें एक कंडीशन, ये तो आर्टिस्टिक वाली तो कट गई, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। देन डिस्टिंक्टिव होगा। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव होगा, सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, हाँ होगा, ये भी आंसर सही है। मेजरेबल होगा? यस, मेजरेबल का मतलब आइडेंटिफाइबिलिटी होगा। पॉपुलर, पॉपुलर इज नॉट ए क्राइटेरिया, तो ये वाली भी आंसर गलत हो गई। देन डिस्परेट, डिस्परेट का क्या? डिस्परेट तो कोई भी सेगमेंट की रिक्विजिट नहीं थी। देन एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस। देन मैनी, बहुत सारे सेगमेंट होने चाहिए, यस ये भी सही है। नहीं, ये डेस्परेट, डेस्परेट का क्या मतलब हुआ? डेस्परेट का मतलब हुआ सेपरेट, सेपरेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, मैनी नहीं होनी। मैनी हो सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड मैनी सेगमेंट हो सकते हैं। देन प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसमें भी एक रॉन्ग है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो सकता है, यस। एक्सेसिबल, यस। मेजरेबल, यस। प्रॉफिटेबल, यस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट। डिस्टिंक्ट, एक्सेसिबल, मेजरेबल एंड प्रॉफिटेबल। इसको आप पेज नंबर, हम किस पेज नंबर पर गए थे? पेज नंबर 1.39 पर, पेज नंबर 1.39 पर गए थे, वहीं पर हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये पेज एमसीक्यू चेक। यस 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 भावना, यस भावना, यस यस, यू कैन इजली चेक इट आउट। ओके, पेज नंबर 1.39 पर, यहाँ पर आप चाहे लिख लो, पेज नंबर 1.39 पे एमसीक्यू 10 का नाम वो है क्या, द एक्सप्लेनेशन, तो वहाँ से आप इसको एक बार देख सकते हो लास्ट डे पर। देन ये केस लिस्ट बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो पहले एमसीक्यू देखो, कभी भी जब केस बेस्ड एमसीक्यू आए तो सबसे पहले एमसीक्यू के क्वेश्चन सर पहुँचना। ये एमसीक्यू पेन गेन, पेन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स पर है, ठीक है। तो अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जब मैंने ये किससे रिलेटेड है, ये है कैनवस मैप से रिलेटेड, वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस पे। तो ये वाला एमसीक्यू, ये पोर्शन मैं अभी छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू मैं अभी छोड़ रही हूँ, ये पूरा केस, मैंने केस सिनेरियो, इसको पेंडिंग मार्क कर लो, ये हम अगले सेशन में करेंगे, जब तक आप भी पढ़कर आना, ठीक है। यस, आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग द सेम, कि अभी मैंने रिसेंटली वो लेक्चर दिया है, तो मे भी बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, तो इसको आप पढ़कर आना, हम उसके बाद करेंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन मैप मैंने अभी, यस, बहुत छोटा पोर्शन कवर किया, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एंड वो वीडियो मैं आप लोग को दूंगी। ओके 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 तरनप्रीत, ओके। वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवस पर हम फिर से अच्छे से पढ़ेंगे।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 में, पेज 2.38, पुश या पुल इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर हमने क्या है, केस स्टडी के बेसिस पर हम रिप्लाई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स होंगे वो हम केस स्टडी के बेसिस पर। ये केसलेट बेस्ड सिनेरियो है, केसलेस बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ABC लिमिटेड इज़ ए वेरी पॉपुलर कंपनी विद ए हाई सेल्स वॉल्यूम है यहाँ पर फॉर इट्स प्रोडक्ट। The company has been in this business for last 20 years. The company cycle has been predicted with high accuracy and the product is manufactured can be bought out with the shelf from retail stores. Okay, product retail store से bought किया जा सकता है, buy किया जा सकता है, and the demand is continuous throughout. The demand भी continuous है. Then the next point is inventory turnover is high. Inventory high turnover करती है, okay. आगे पढ़ते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन होगा, बट छोटा सा केस सिनेरियो था तो मैंने सोचा इसको पहले एक बार हाईलाइटेड पॉइंट को, जितने पॉइंट इंपॉर्टेंट उसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। सफिशिएंट कैश फ्लो निकल आएगा। देन प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑप्टिमल, ज़्यादा कोई प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं है और लार्ज स्केल बेसिस पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक मिड साइज कंपनी है एंड सफिशिएंट बार्गेनिंग पावर भी है सप्लायर्स के पास और स्टोरेज एरिया भी है कंपनी के पास, ठीक है। कंपनी के पास अपना खुद का स्टोरेज एरिया भी है, ओके। वर्किंग कैपिटल नीड सफिशिएंट मीट बाय द इंटरनल रिजर्व। हम कोई बाहर से मनी भी रेज नहीं कर रहे हैं, मतलब हम कम्प्लीटली एक अनलेवरेज्ड फर्म है। हम कैसे फर्म है, अनलेवरेज। हम बाहर से कोई पैसा नहीं उठा रहे, जितने भी इंटरनल रिजर्व हैं दे आर सफिशिएंट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी, ओके, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ सप्लाई चेन इज मोस्ट सुइटेबल। तो पुल मॉडल सुइटेबल है या पुश मॉडल सुइटेबल है, इसलिए बता दूं मैं आपको, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा। देखो एक बार जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो चैप्टर्स मैंने बोले वो सारे जितने, मतलब यूट्यूब पर मैंने अभी तक के चैप्टर लिए, अभी तो फिलहाल वही पढ़ा रही हूँ, बट आगे से मैं बता कर रखूँगी कि कौन कौन से चैप्टर आपको कब कवर करने हैं। तो पुल मॉडल में क्या होता था, ये GIT सिस्टम बेस्ड चलता था, जस्ट इन टाइम में, ओके। पहले कस्टमर आके ऑर्डर देता था, फिर सब वो डिस्ट्रीब्यूटर, देन मैन्युफैक्चरर, वो आपको पूरी साइकिल याद है ना, देन वो फिर सप्लायर के पास आता था। तो ये पुल मॉडल के बेस पर चलता था। पुश मॉडल के बेस पर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम फ्लो। पहले सप्लायर वो रॉ मटेरियल देता था, सप्लायर रॉ मटेरियल देता है, किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरिंग के बाद में वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, देन रिटेलर के पास एंड देन कस्टमर के पास। तो ये होती है पूरी सप्लाई चेन किसकी, पुश मॉडल की, ठीक है। पुश मैंने आपको बताया था धक्का देना, प्रोडक्ट को धक्का देना, किसके पास धक्का देना, कस्टमर के पास, ताकि कस्टमर उसको कंज्यूम कर ले, ठीक है। प्रोडक्ट को धक्का देना, ये कोई लॉजिक नहीं है, बट मैंने पुश का मतलब आपको समझा था, सो दैट यू कैन रिटेन इट फॉर लॉन्ग। अरे अरे अरे, सबको तो याद आ रहा है। यस, स्वप्निल, नेहा, स्नेहल, साक्षी, आयुषी, भावना, अजित, यस एवरीवन नोस, कृति, यस, शुभम, तरनप्रीत, उत्कर्ष, पारुल, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो मैंने जो पॉइंट मार्क कराए थे कि लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। इनके पास स्टोरेज एरिया भी है। लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब ये पुल मॉडल तो नहीं हो सकता। कस्टमर आकर फिर तो अगर अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा है तब तो हम लार्ज स्केल पर नहीं, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे नहीं आते, कस्टमर तो एक एक दो दो करके आएंगे। लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का मतलब कि हम कहीं ना कहीं पुश मॉडल हम अपने पास मैन्युफैक्चरिंग करके रख रहे हैं, हम पुश मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड भी कंटिन्यूस है, तो मतलब कहीं प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होगा, तो हम पुश मॉडल अपना रहे हैं, यहाँ पर पुश मॉडल का यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, पुश मॉडल, आंसर नंबर बी, ओके। हाँ, वैसे भी सबने आंसर दे दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई चेन आर द, वेयर इज़ द कस्टमर, कस्टमर कहाँ होता है पुश मॉडल में, कस्टमर कहाँ होता है, कस्टमर तो सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि कस्टमर धक्का देके तुम कस्टमर के पास पहुँचते, कस्टमर कहाँ होता है, सबसे आखिरी में,
एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन। पुश मॉडल में एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन कस्टमर होता है, धक्का देकर कस्टमर के पास पहुंचता है ना। यू रिमेंबर दोस्त, अभी जो मैंने आपको सप्लाई चेन बताई कि सबसे पहले किसके पास रहता है, सबसे पहले रहता है प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सप्लायर के पास, फिर मैन्युफैक्चरर के पास, फिर मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, देन रिटेलर के पास, देन कस्टमर के पास। तो कस्टमर सबसे लास्ट में होता है। ओके, तो एट द एंड ऑफ द सप्लाई चेन, एंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ हाई टर्नओवर रेशियो। हाई टर्नओवर रेशियो का इम्प्लीकेशन क्या होता है, मैं आंसर छुपा रही हूँ, ठीक है। हाई टर्नओवर रेशियो का इम्प्लीकेशन क्या होता है, हाई टर्नओवर रेशियो का इम्प्लीकेशन होता है कि इन्वेंट्री कितने बार टर्न हो गई, मतलब इन्वेंट्री हमारे पास रुक नहीं रही, इन्वेंट्री बार बार टर्न होके मनी में रियलाइज हो जा रही है। भाई इन्वेंट्री है हमारे पास, हमने उसको सेल किया, वो मनी में रियलाइज हो गई, तो इसका मतलब इन्वेंट्री का टर्नओवर हो रहा है। और जितना हाई टर्नओवर होगा उतनी ही कम कैपिटल लॉक होगी, क्योंकि इन्वेंट्री को हम टर्न कर पा रहे हैं, इन्वेंट्री लॉक नहीं, वो कैपिटल को हम, इन्वेंट्री को जब हम सेल कैश में रियलाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब कैपिटल रिलीज हो गई। ओके, जब इन्वेंट्री हाई टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि कैपिटल रिलीज होते जा रही है। जब कैपिटल रिलीज हो गई इसका मतलब कि वर्किंग कैपिटल लॉक नहीं है, कम से कम वर्किंग कैपिटल कम से कम वर्किंग कैपिटल लॉक हो रही है। यस, तुम सब पहले ही आंसर दे, तो मुझे कुछ समझाने भी तो दो। यस, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट। इन्वेंट्री लॉक फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कम इन्वेंट्री लॉक होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ध्रुव, अनिमेश करेक्ट, उत्कर्ष करेक्ट, पारुल, जय, यस करेक्ट, श्रुति करेक्ट। या सुपर इंटरेक्टिव। व्हाट एडवांटेज। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन से, स्केल ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन से हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि हमारा प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से हमें क्या होता है, जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम डिफ्रेंसिएशन और स्ट्रैटेजी तो अडॉप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर दो पॉइंट दिए हुए हैं, डिफ्रेंसिएशन और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे या फिर लो कॉस्ट। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब मैंने आपको बताया था कि जब डिफ्रेंसिएशन स्ट्रैटेजी दिखे तो उसको फ़ौरन आईफोन मान लेना। तो आईफोन तो हम लार्ज स्केल पर कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आईफोन के लिमिटेड ही कस्टमर है। अगर हमें बहुत लिमिटेड का मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट है। ओके, लिमिटेड का मतलब ये नहीं कि बस 2-4 लोग हैं, ऐसा नहीं। लिमिटेड का मतलब कि मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी तो एंड्रॉयड खरीदती है। तो उसके लिए लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी कभी भी, डिफ्रेंसिएशन हम कभी भी लार्ज स्केल के लिए नहीं ले सकते। अगर हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल में वर्क करना है, अगर हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, तो हमेशा हमें लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी ही लेनी पड़ेगी। तो द राइट आंसर इज ए। ओके, रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है जब हम पुश मॉडल ले रहे हैं, तो पुश मॉडल में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, ओवर स्टॉकिंग होती है। हाँ, जब हम ज़्यादा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो ओवर स्टॉकिंग होने के चांसेस है, वर्किंग कैपिटल लॉक होती है। यस, वर्किंग कैपिटल भी लॉक होती है, दोनों ही रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो बोथ ए एंड बी, सी आंसर इज करेक्ट। देन had ABC Limited being produced products that are highly customized in nature based on individual customer requirement, what would be the most appropriate type of supply chains to adopt individual customer requirement? What would be the most appropriate type of supply chain? सबसे most appropriate type of supply chain क्या होती है, गेस करिए। यस, पुल मॉडल, क्योंकि ये जस्ट इन टाइम प्रमोट करता है। जस्ट इन टाइम से आपकी काफ़ी कॉस्ट सेव होते जाती है, इसलिए आइडियल टाइप क्या है, पुल मॉडल। जब कस्टमर रिक्वायरमेंट बताए तब हम प्रोडक्शन करेंगे, बट इट कैन नॉट बी यूज इन एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, बस नहीं इतना ही है। ओके,
चलो फिर चलते हैं अपन यहाँ पर। हाँ, चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 ख़त्म, देन विल मूव टू चैप्टर नंबर 3। सो हियर वी आर ऑन पेज नंबर 3.48। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू बहुत ही ईजी हैं। अब ये बोल रहा है सबसे पहला, वेट, ये क्या हो रहा है, नीचे जाओ, आंसर नहीं दिखना चाहिए। यस स्वप्निल, यस, या बाय देन वी विल कंप्लीट, या okay, let's come to MCQ number 1. It says 5S fits in which state of PDCA? PDCA मतलब होता है प्लान डू चेक एक्ट। ये रिमेंबर PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, उसमें 5S कहाँ पर आता है? 5S का मतलब होता है शाइन, 5S सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये 5S का मतलब होता है। तो ये सब काम करने के होते हैं, हमें सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सेट इन ऑर्डर करना पड़ेगा, शाइन करना पड़ेगा, शाइन करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट को, देन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, देन यू हैव टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू। सो इट कम्स अंडर डूइंग स्टेज, डू। ये प्लानिंग स्टेज नहीं है, 5S इज ए डू स्टेज, ये करना पड़ता है। सो ये कहाँ आएगा? ये डू वाली स्टेज में आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अरे मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन इसके एमसीक्यू बहुत सिंपल है। यहाँ पर बोल रहा है कि विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ शाइन। शाइन का मतलब होता है प्रोडक्ट को चमकाना, शाइन मतलब चमकाना, प्रोडक्ट को चमकाना। तो प्रोडक्ट को चमकाने का बेनिफिट क्या नहीं है? लेस प्रोडक्शन डाउन टाइम, ये तो है, क्योंकि प्रोडक्शन में कम टाइम लगेगा, प्रोडक्ट सब साफ़ सुथरे रहेंगे। तो अगर हमें कोई रॉ मटेरियल देना है तो हमने डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में दे दिया, कम डाउन टाइम लगा। दूसरा, हैप्पियर एम्प्लॉय, जब कम टाइम लगेगा तो एम्प्लॉय भी खुश, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि अरे बस प्रोडक्ट उठा के हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में देना, सारे प्रोडक्ट तो साफ़ सुथरे ही हैं, सारा रॉ मटेरियल, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लगना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं है, क्लीननेस ऑलरेडी वो क्लीन है। देन इम्प्रूव्ड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जब प्रोडक्ट साफ़ सुथरा रहेगा, बिल्कुल शाइन करता रहेगा, तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। अदरवाइज़ गंदा पड़े रहने से कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। देन ये तीनों पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री रिडक्शन, अब अगर मतलब लॉजिकली बताओ, अगर कोई चीज़ है ये रखी है और उस पर धूल गर्दा जम गई है, वो बहुत गंदा हो गया, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा गंदा होकर? नहीं, रिड्यूस तो नहीं होगा ना, रिडक्शन तो नहीं होगा ना, तो इन्वेंट्री रिडक्शन नहीं होता है। दिस इज़ रॉन्ग आंसर, द लास्ट वन इज़ रॉन्ग आंसर। ओके, डी इज़ करेक्ट आंसर, बिकॉज द लास्ट वन उसने कहा है नॉट द बेनिफिट, तो लास्ट वन वाला बेनिफिट नहीं है, सो इट इज़ करेक्ट आंसर। आप सब पहले ही बता दो, काइजन कॉस्टिंग किस पर फोकस नहीं करता है? 5S पे फोकस नहीं करता है, नहीं 5S पे फोकस करता है। पुकायो के डको इस पे फोकस करता है। जस्ट टाइप पे इम्प्रूवमेंट बाय इनोवेशन पे फोकस नहीं करता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, मैंने आपको अलग अलग करके बताया था ना, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम में मैंने आपको 6 पॉइंट बताया था, इनोवेशन में एक, इनोवेशन में प्रोसेस इनोवेशन बताया था, यू रिमेंबर? यस। तो जो काइजन कॉस्टिंग होता है वो लीन सिस्टम का पार्ट होता है। काइजन कॉस्टिंग किसका पार्ट होता है? लीन सिस्टम का। और जो प्रोसेस इनोवेशन, जो इनोवेशन इम्प्रूवमेंट बाय इनोवेशन है, ये किसका पार्ट होता है? ये प्रोसेस इनोवेशन का। ओके, ये किसका पार्ट होता है? ये प्रोसेस इनोवेशन का पार्ट होता है। दैट्स वाई इट वॉन्ट कवर हेयर। लीन सिस्टम कभी भी इनोवेशन पे फोकस नहीं करेगा। लीन सिस्टम अपने अंदर जो 6 हेडिंग्स हैं, 5S का पोका, जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल, इन पे फोकस करेगा। हाँ, अहमद इज आस्किंग व्हाट इज पोकायोके। या पोकायोके ये होता है, पोकायोके इज ए टेक्निक फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इट्स नथिंग। इसमें एग्जाम्पल या कुछ भी इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में नहीं दिया, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कवर भी नहीं किया, और ये ज़्यादा आने वाला भी नहीं है। बस इसको यहाँ पर एक नाम बढ़ाने के लिए दे गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट आप क्लियर रहो ना कि लीन सिस्टम में आता है, काइजन लीन सिस्टम में आता है, और प्रोसेस इनोवेशन में सिर्फ एक चीज़ आती है, इनोवेशन, तो ये जाएगा अपने प्रोसेस इनोवेशन। ये क्यों लीन सिस्टम में जाएगा? दैट्स इट, सिंपल। यस,
देन MCQ नंबर 4, डिफाइन। डिफाइन DMAIC। DMAIC का क्या मतलब होता है? DMAIC का फुल फॉर्म होता है डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो डिफाइन हम यहाँ क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्या डिफाइन करते हैं? प्रॉब्लम, कस्टमर गोल एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये डिफाइन करना पड़ता है। आप देखोगे इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दिया है? विच इज़ नॉट अ टूल यूज इन डिफाइन। चार्टर, प्रोडक्ट चार्टर एंड प्लान। यस, प्लान इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट गोल। यहाँ हमने क्या कहा था? प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो प्लान इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट गोल, ये तो कवर हो गया। देन चेक शीट। चेक शीट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम? नो। चेक शीट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट गोल? नो। चेक शीट इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट? नो, ये तो नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट इम्पैक्ट एनालिसिस। इट कम्स अंडर प्रॉब्लम फेस। देन प्रोसेस मैपिंग, इट कम्स अंडर प्रोजेक्ट गोल्स। तो क्या नहीं आया? चेक शीट नहीं आया। So, which is not a tool used in defined process? Check sheet. Check sheet is not used in defined process. The correct answer is B. Next is OE. OE अभी मैं यहाँ पर नहीं करा रही क्योंकि इसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला समझना पड़ेगा और अभी मैंने इसके क्वेश्चन टेकअप नहीं किए। इसको नेक्स्ट कल वाले सेशन में कवर करूँगी। तो OE वाले पॉइंट को पेंडिंग मार्क करिए, ठीक है। पेंडिंग मार्क कर लीजिए, बट मुझे याद है कि मुझे क्या क्या कराना है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं व्हाट इज़ द बेस फॉर TPM। TPM का बेस क्या है? 5S। बार बार मैंने बताया TPM का पिलर 5S। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। सो TPM का बेस क्या है? 5S। सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 टू। इट्स ओवर? यस, इट्स ओवर। सो लेट्स प्रोसीड टू चैप्टर नंबर 6. So we are here on chapter number 6. Chapter number 6.74 पे सब लोग आ जाए। 6.74, पेज नंबर 6.74। यस दीक्षा, यस दीक्षा। दीक्षा कह रही है कि ये सब कुछ इतना आसानी से कैसे हो रहा है? ये सब कुछ इतना आसानी से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़े हैं। अब आगे भी आसानी से होगा और एग्ज़ाम भी आसानी से होगा। Just focus on. So we are here on chapter number 6, 6.74. Yes, Bhavna. Yes. Okay. Yes, Vijay. You need to do. Yes, Adil. You need to do what you need to do. You need to just read जो मेरे साथ करो. Then you need to revise. Then what you need to do? You need to recall. अभी अगर हमें रीड करने में 1 आवर लग रहा है, तब आपको जब रिवाइज करने बैठोगे तो उसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एंड 10 मिनट्स ही लगेगा। बिलीव मी, यू विल कंप्लीट एवरीथिंग आई हैव कवर्ड टुडे इन 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स इवन। बस एक बार उसको थोड़ा सा ध्यान लगा कर बैठना और 10 मिनट में सब कुछ करके रख देना। फिर सारा दिन मत देखना, बस कॉन्सेप्ट पढ़ते रहना। हाँ, 70+ लाने हैं, कैसे भी करके 70+ लाने हैं, वो तो अपन को नहीं छोड़ना। मेमोरी वीक है? नहीं ध्रुव, ऐसा नहीं होता। किसी की मेमोरी वीक नहीं होती, सबकी मेमोरी अच्छी होती है। ये तो बस सोचने की बात होती है। यस नेहा। अच्छा, थर्ड आर। फर्स्ट आर इज रीड, देन रिवाइज, देन यू नीड टू रिकॉल। ओके। Let's proceed with chapter number 6. So what it is saying, the correct pair. Customer pricing कैसे होती है? Perceived value पे। तो ये क्या होगी? Perceived expectation of customer. Then skimming कैसे होगी? skimming तब होती है जब हम बहुत हाई वैल्यू पर इसको अपने जो प्राइस टारगेट करते हैं वो बहुत हाई वैल्यू पर चार्ज करते हैं, तो उसको कहते हैं स्कीमिंग प्राइसेस। हाई प्राइस पे, ये रहा हाई प्राइस। देन पेनिट्रेशन, लो प्राइस पे हम मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग हमेशा लो प्राइस पे। देन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, मतलब ये मैंने आपको बताया था 499, ये तो मेरी वाली प्राइसिंग है 499 प्रैक्टिस सेशन की।
ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अगर देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे की, मेरी ऐसे कुछ नहीं था इंटेंशन, बट इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है, अगर you put it as 500, the people think oh it's 500, but you take it as 499, the people think oh it's 4। ये जो 4 होता है ना, ये बहुत काम कर जाता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यस 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 इस ध्रुव, यस विजय, हमारा पर्पस तो यही था दैट वी कुड प्रोवाइड इट to the maximum people, the people, yeah, the student who even can't afford to take classes for SPOM set B, they will also be able to take it, just this, yeah, yes, so okay let's proceed with it। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो जितना भी एंड विथ 99 होता है, ये होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो हमारा पेयर क्या बना, ए विथ 2, बी विथ 3, सी विथ 4 एंड ए विथ 1। ये पेयर बना अपना। ए विथ नहीं, डी विथ 1। सो डी विथ 1 ये वाला, ए विथ 2, सी विथ 4, ए विथ 2, डी, बी विथ 3, सी विथ 4, डी विथ 1। सो दिस इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, देन MCQ number 2, in a product mix decision which is the most important factor to consider in order to tie the maximum profit। maximum profit कब आता है, देखो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट जब हम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन लेते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या कंसिडर करते हैं, वहाँ हम कंसिडर करते हैं बॉटल नेक। ये मैंने बॉटल नेक बनाई थी ना आपके लिए, यस ऐसी ही बॉटल नेक, ये बॉटल है, ये उसकी नेक है छोटी सी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा पाता है। तो ये क्या हुई, ये हुई उस बॉटल की बॉटल नेक, बॉटल की नेक नहीं बन रही, ओके ये हुई छोटी सी बॉटल नेक, जिससे उस बॉटल के अंदर कुछ नहीं जा पाता है ड्यू टू बॉटल नेक, क्योंकि इसका बॉटल का नेक छोटा है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, हम पहले तो देखो यहाँ पर लिखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यस कंट्रीब्यूशन तो कंसिडर करते हैं। देन प्रॉफिट पर यूनिट, नहीं प्रॉफिट तो हम कंसिडर नहीं करते, दोनों काट दो। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बॉटल नेक एक्टिविटी। इसीलिए बॉटल नेक को क्या बोलते हैं, स्केर्स रिसोर्सेज। बॉटल नेक है मतलब जिसकी कमी है, जो छोटा है, नेक छोटा होता है ना बॉटल का, तो जिसकी कमी है, इफ वी टेक द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट, इट विल हेल्प इन मेकिंग द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, इट विल वर्क एज ए की फैक्टर डिसीजन। जो की फैक्टर होता है हम उसको लेकर अपना डिसीजन लेते हैं स्केर्स रिसोर्सेज को। तो ये वाला पॉइंट सही है, पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट नंबर ए इज करेक्ट। लेट्स प्रोसीड टू MCQ number 3। इट सेज दैट वी आर सेलिंग एन लिक्विड नाइट्रोजन गैस एंड लेस अटेंशन टू ओन कॉस्ट एंड डिमांड। हम अपनी कॉस्ट और डिमांड पर कोई फोकस नहीं रखते एंड हम कॉम्पिटिटर के प्राइसेस पर फोकस रखते हैं। वैल्यू प्राइसिंग है, नहीं हम तो वैल्यू ही नहीं करते, अपनी तो बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, तो वैल्यू प्राइसिंग कैसे हो सकती है। इमेज प्राइसिंग है, नहीं हम किसी की इमेज देख के थोड़ी प्राइसिंग रख रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, क्या 499 रखा है इसने, अब ये थोड़ी सी कौन सा बाइट्स की तरह इतना सस्ता दे देंगे, है ना। क्या रखा है, कॉम्पिटिटर के प्राइस को देखकर, तो यहाँ पर गोइंग रेट प्राइस। यस सर जी, यस 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 yes, going rate price, everyone correct। Swapnil, yes correct, Snehal correct, Sakshi correct, Aishi yes, Dhruv correct, everyone correct। The next point is MCQ number 4, where it is saying that DMart is a retail chain, competition is stiff, competition बहुत hard है, and revolve the price among the market player in retail chain segment। DMart adopted the pricing of
adopted the practice of pricing some of its product below cost with an intention to destroy the competitor. इनका इंटेंशन है ये लो कॉस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इनका इंटेंशन है कि इन कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करना है. तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी हुई? वेरी सिंपल डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट. सबसे पहले पढ़ते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग. लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होता है? लॉस लीडर प्राइसिंग का मतलब होता है मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, सपोज एक प्रोडक्ट को हम लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं, एक प्रोडक्ट को हम हाई कॉस्ट पे बेच रहे हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो बैलेंस हो रहा है. इसको कहते हैं लॉस लीडर. इसका जो फ़ायदा होता है वो क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट को हम लो कॉस्ट पे बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को देख के हमारे पास कस्टमर्स आ जाते हैं और हम उस प्रोडक्ट को तो बेचते ही बेचते हैं, उसके साथ साथ जो लगे हुए प्रोडक्ट बेचना है उसको हाई प्राइस पर बेचना है. लॉस भी नहीं होता और कस्टमर भी आ जाते हैं. इट्स कॉल्ड लॉस लीडर प्राइसिंग. देन द सेकेंड इज प्रीडेटरी प्राइसिंग. प्रीडेटरी प्राइसिंग का क्या मतलब होता है? प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम अपने हम अपने प्राइस को इतना लो रखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट से निकल जाते हैं, हम कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये कौन सी प्राइसिंग है? ये है प्रीडेटरी प्राइसिंग. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है दो लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना. अब ये दो लोगों से अलग अलग प्राइस क्यों चार्ज करेंगे? एज, जेंडर, प्रोडक्ट, क्वालिटी, टाइम, प्लेस, किसी भी चीज़ पर कोई भी बेसिस हो सकता है प्राइस को डिस्क्रिमिनेशन करने का. जैसे अगर कोई कस्टमर है तो वो रात के टाइम में, अगर सपोज एक डॉक्टर की शॉप पे डॉक्टर का क्लिनिक है, तो अगर आप रात के टाइम पर गए इमरजेंसी में तो द डॉक्टर विल चार्ज हाई. बट इफ़ यू आर गोइंग टू द डॉक्टर एट द नॉर्मल क्लिनिक आवर्स, तो they will charge normal price. So the price discrimination is there for time, जहाँ पर बेसिस क्या है? टाइम है, तो इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. देन पेनिट्रेशन तो अपन लो प्राइस रखते हैं मार्केट में रहने के लिए, किसी को मार्केट से निकालने के लिए नहीं. जब मार्केट से निकालने के लिए हम अपना लो प्राइस रखते हैं उसको कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग. ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रीडेटरी प्राइसिंग. द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने नोट दिया पेनिट्रेशन प्राइसिंग को प्रीडेटरी के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. क्या नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है. यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बाइट्स के प्रैक्टिस सेशन में है सब. यहाँ पे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं? पेनिट्रेशन मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी और प्रीडेटरी मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी विद द इंटेंशन टू मेक द कॉम्पिटिटर्स आउट फ्रॉम द मार्केट. ओके, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा एक कॉफ़ी शॉप है, कैफ़े कॉफ़ी हब. यहाँ पे हम कॉफ़ी के ग्लास के ऊपर वो कॉफ़ी लेने वाले का नाम लिख रहे हैं, मतलब कॉफ़ी कप के ऊपर कॉफ़ी लेने वाले का नाम लिख रहे हैं. हाँ, सब देखो, सब बोलने लगे अब. हाँ, सब बोलने लगे. स्वप्निल, नेहा, यस, सौम्या, समया, यस, विजय, यस, करेक्ट. सो हाँ, ये उनकी स्ट्रैटेजी, उनके बारे में बात हो रही है. बट यहाँ पर कानो मॉडल लगा है. तो कानो मॉडल क्या कहता है कि ये कौन से एट्रीब्यूट के अंदर, कानो मॉडल एट्रीब्यूट के किस एट्रीब्यूट के अंदर ये कवर हो रहा है? रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि आपकी वैल्यू एडिशन की वजह से कस्टमर भाग गया. क्या आपने अगर कॉफ़ी के ग्लास के ऊपर किसी का नाम लिख दिया तो क्या कस्टमर कॉफ़ी लेने से मना कर देगा, भाग जाएगा कॉफ़ी लेने से? नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो ये रिवर्सल नहीं है. डिलाइटर का मतलब होता है एक्साइटमेंट. क्या आपके कॉफ़ी के ग्लास पर नाम लिखने की वजह से कस्टमर बहुत एक्साइटेड हो गया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. कस्टमर तो नॉर्मल ही है, तो ये डिलाइटर एट्रीब्यूट भी नहीं. परफॉर्मेंस मतलब वन डायमेंशनल. क्या आपके कॉफ़ी ग्लास पे नाम लिखने की वजह से कस्टमर किसी और जगह जा रहा था, किसी और शॉप पे कॉफ़ी पीने जा रहा था, कि वो आपकी शॉप पर आ गई? क्या ये वन डायमेंशनल है? कि ये एक वो पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट. इनडिफरेंट. क्या कस्टमर को आपके कॉफ़ी ग्लास पे नाम लिखने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ करेक्ट आंसर. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कस्टमर को. ओके, यस, MCQ नंबर, ये डी इज़ द करेक्ट आंसर. D is the correct answer. What had happened to you? ये टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट
देन MCQ नंबर 6, COO, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, COO मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड हेड अबाउट द कॉनो मॉडल। इन्होंने कॉनो मॉडल के बारे में सुना और अब ये कह रहे हैं कि अब हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन्हांस करना है, बट इनको मालूम नहीं है कि एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं या किन किन एट्रीब्यूट पर मेनली फोकस करना चाहिए। मेनली किन एट्रीब्यूट पर फोकस करना चाहिए, तो मेनली किस पर फोकस करना चाहिए, वन डायमेंशनल। ऐसे एट्रीब्यूट पर फोकस करो जिसकी एक डायमेंशन की वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदने लग जाए, तो वो एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना ऊपर, वन डायमेंशनल एट्रीब्यूट, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। अगर नहीं तो यूट्यूब पर कानो मॉडल के नाम से एक अलग वीडियो डाली हुई है, आप उस पर जाकर इसको सर्च कर सकते हो। सो इट्स वन डायमेंशनल प्रोडक्ट, ओके। देन इट्स ओवर, क्वाइट astonishing. You all have seen Kano model. Yeah, there is a वीडियो ऑन यूट्यूब टू। या आपके पास तो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया था आप लोग को, बट यूट्यूब पर बाद में आएगी, मे बी आज शाम तक या कल तक की आ जाए। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट कानो मॉडल। ये कानो मॉडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे, इस सारे के 2 क्वेश्चंस थे। देन बार्ट की प्राइसिंग पर थे, तो आप इस पोर्शन पर, इस चैप्टर में प्राइसिंग पर बहुत फोकस करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, MCQ portion, chapter number. So here we are on chapter number 7, page number 7.41, page number 7.41. So chapter number 7 में भी बस maximum 4 MCQs हैं, and we are sorted with the MCQ portion except chapter 5. chapter 5 is a technical chapter, तो हम उसको अभी, उसके YouTube पर भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो अभी मैं उसको पढ़ा भी नहीं सकती वैसे भी। तो एक बार हम उसके कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे यूट्यूब पे, उसके बाद हम उसके MCQ एंड पूरा चैप्टर एक साथ ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसके MCQ देखते पहले। तो यहाँ पर बोल रहा है पैरेटो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द लॉ। पैरेटो प्रिंसिपल किस लॉ पे बेस्ड है, डिमिनिशिंग रिटर्न, वेरिएबल रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न या स्टेबल रिटर्न, किस लॉ पर बेस्ड है पैरेटो प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल इज बेस्ड, अरे याद नहीं आ रहा, किसी को नहीं याद आ रहा, अरे चलो देखते हैं फिर। पैरेटो एनालिसिस, पैरेटो, ये देखो पेज नंबर 7.35, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। पैरेटो प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ओके। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे बेस्ड होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है एज सच। चलो चलते हैं वापस अपने MCQ सेक्शन पर। तो आप बताइए क्या हुआ, पैरेटो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ओके। देन द सेकंड MCQ इज पैरेटो प्रिंसिपल कैंट बी अप्लाइड टू। पैरेटो प्रिंसिपल किस पे अप्लाई नहीं हो सकता, ये याद आ रहा है किसी को? अच्छा, या ओके, माय मिस्टेक। अभी आप लोगों ने चैप्टर 7 की वीडियो नहीं देखी होगी, चैप्टर 6 की भी नहीं देखी होगी फिर, पर वो तो बता दिया। अच्छा, कुछ लोगों ने नहीं देखी है, ओके। मैंने इसलिए बोला था कि सारे चैप्टर को कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस सेशन में आना, ओके। देन फर्स्ट कंप्लीट योर वीडियो फ्रॉम देयर। तो हम यहाँ पर MCQ कवर कर ले, छोड़ दें, एक काम करते हैं, हम MCQ कवर कर लेते हैं, 4 MCQ हैं सिर्फ। आप एक बार उसको पढ़ के दोबारा से इस MCQ को घर पर देख लेना, ओके। मैं आपको डायरेक्ट इसको दिखा रही हूँ कि किस पेज पर है। तो 7 पर ये सारे डायरेक्ट MCQ हैं, तो मैं बता रही हूँ कि ये किस पेज पर है। एप्लीकेशन, जिसने देख ली, रिकॉर्डेड सेशन देखने वाले लोगों ने देख ली होगी, ओके। तो वो आंसर दे पा रहे हैं आई थिंक, यस। एप्लीकेशन किस पे, प्राइसिंग, कस्टमर एनालिसिस, ये एप्लीकेशन दिया हुआ है। स्टॉक कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इस पे एप्लीकेशन होता है पैरेटो एनालिसिस का। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्वेश्चन क्या है, पैरेटो प्रिंसिपल कांट बी अप्लाइड टू। पैरेटो प्रिंसिपल किस पर अप्लाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल,
कस्टमर तीनों पर तो होता है, नन ऑफ, मतलब किसी पे तीनों आंसर पे एप्लीकेबल होता है, तो कांट बी अप्लाइड टू का आंसर क्या होगा, नन ऑफ अबव, डी आंसर इज करेक्ट। ओके, देन द MCQ नंबर 3, पैरेटो प्रिंसिपल कब करना चाहिए, कब पैरेटो एनालिसिस लगानी चाहिए, पीरियोडिकली, कंटिन्यूसली, ओकेजनली या क्वार्टरली, कब लगानी चाहिए। हाँ, एक एक करके पढ़ते हैं। कंटिन्यूसली मतलब पैरेटो एनालिसिस ही करते रहो, कभी उसको परफॉर्म ना करो, बस एनालाइज 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 ही करते रहो। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। देन ओकेजनली मतलब जब समझ में आया उठा के पैरेटो एनालिसिस कर लिया, दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू। द नेक्स्ट इज क्वार्टरली। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि क्वार्टरली आपको पैरेटो एनालिसिस करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज पीरियोडिकली। आपको एज पर द सिचुएशन, व्हेन it depends from situation to situation, when should you perform the when should you do the Pareto analysis, when it is your requirement to do the Pareto analysis, so you should do it periodically. जब आपको लगे that Pareto analysis की need है, you should perform it. Okay, no, Neha, you said answer wrong. it क्वार्टरली कैसे हो जाएगा, मतलब इट्स नॉट रिटन इन लॉ, है ना। ये क्वार्टरली की लिमिट तो लॉ में होती, दैट यू शुड फाइल दिस एंड दिस कंप्लायंस विद द सेबी क्वार्टरली, एंड दिस विद इन 21 days, दिस विद इन 15 days. सो दिस इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल. पैरेटो एनालिसिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन. सो इट्स periodically is the correct answer. Yes, Taranpreet, बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस 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 ध्रुव, भावना, यस अरिजीत, एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट करेक्ट. समया, जय करेक्ट, श्रुति राइट, शुभम करेक्ट, आयशी यस, स्नेहल यस, एवरीवन करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. MCQ नंबर 4, विच नीड टू बी रिस्पॉन्डेड फर्स्ट, ट्राइवल, मैनी या वाइटल फ्यू. देखो इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता दूं. पैरेटो एनालिसिस का मतलब 80-20 रूल. ओके, हम 20% चीज़ों पर फोकस करके 80% रिजल्ट लेकर आएंगे. दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरेटो एनालिसिस. यू नो, अगर किसी ने वीडियो नहीं भी देखी तो इतना तो जनरल पता ही है ना सबको. दिस इज वेरी 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 मच कॉमन. 80-20 रूल ये तो अपनी स्टडीज़ पर अप्लाई करते हैं. 20% एफर्ट लगाकर 80% स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो बात अलग है. हाँ, या 80-20 रूल, 20% एफर्ट लगाकर 80% रिजल्ट आना. दिस इज 80-20 रूल. तो वो कह रहा है, MCQ क्वेश्चन पूछता है विच वन नीड टू बी रिस्पॉन्डेड फर्स्ट. कौन सा पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए, 80% पहले रिस्पॉन्स करना चाहिए या 20%. अगर एक और एग्जाम्पल यहाँ लेती हूँ मैं. 80% प्रॉब्लम्स आती हैं 20% वजह से. 20% रीज़न होते हैं 80% प्रॉब्लम आने के. तो हम 80% प्रॉब्लम को देखेंगे या 20% रीज़न को देखेंगे. ऑब्वियसली 20% रीज़न को देखेंगे. जब हम 20% रीज़न सॉल्व कर लेंगे तो 80% प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी. यस एग्जैक्टली ध्रुव, यस यस नेहा, साक्षी, यस एग्जैक्टली, यस स्नेहा, अहमद करेक्ट, कीर्ति करेक्ट, अनिमेश राइट, यस अदिल करेक्ट. So 20% of our problems are due to 80% of our problems are due to 20% reason. So which one to be responded first? आप 80% रिस्पॉन्ड करोगे या 20%. 80% को यहाँ पर ट्राइवल मैनी बोला है एंड 20% को वाइटल फ्यू. विच वन यू रिस्पॉन्ड फर्स्ट, 20% रिस्पॉन्स करोगे ना. सो द करेक्ट आंसर इज वाइटल फ्यू. फ्यू रिस्पॉन्ड करो, मैक्सिमम खुद ब खुद कवर हो जाएगा. ओके, 20% कॉज पर डिपेंड हो, मतलब 20% रीज़न देखो, 80% प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाने वाली हैं. तो वाइटल फ्यू पर
बहुत गंदा हो गया। वाइटल फ्यू पर फोकस करो, ट्राइवल मैंने खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट MCQ ऑफ चैप्टर नंबर 7। यू ऑल आर हैप्पी दैट वी हैव कवर्ड absolutely entire module 1 MCQ. Congratulations, you all guess is right. हाँ, so यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज मैं रिकॉर्डेड सेशन वालों को दे रही हूँ कि यहाँ पर हम लोग को ऑलमोस्ट प्रैक्टिस सेशन करते हुए 2 आवर्स हो चुके हैं, बट रिकॉर्डेड सेशन वालों को थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कट के मिलेगी, बिकॉज जहाँ पर हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जैसे गेसिंग में MCQ पार्ट की, तो उस पार्ट को हम कट शॉर्ट करके आपको देंगे। बट आपको ऐसा नहीं करना कि एकदम बैठकर वीडियो देख रहे हैं। आपको जहाँ पर MCQ में गेस करने को बोलूँ वहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, उस MCQ को अपने माइंड में सोचना है एंड देन आगे बढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ द करेक्ट वे टू सॉल्व, दैट इज़ द करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व द MCQ portion, because you have to face the MCQ portion in your examinations. So be very disciplined, as I have said earlier that you have to make promise to me to be very disciplined, and you made me promise na. Yeah, all live students made me promise, but the recorded session 1 should also made me promise. एंड अब यहाँ पर मैं आप लोग के जितने भी लाइव सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके कोई ऐसा डाउट नहीं है, बट मैं 2-4-5 मिनट में इसको रैप अप कर दूँ। एंड जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं वो डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, सो हियर वी आर रैप अप टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, या हैव अ गुड डे, बाय बाय।